Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, a smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB, as shown in figure. The bead is at rest with respect to the circular ring at position P as shown. Then the value of omega square is equals to. So these are our four options. We have to find the correct value of omega square. So this is our bead which is at fixed point P, and this circular ring is rotated about AB. So we can say this circular bead will also rotate about this circle which has radius r by 2. So students, we know that on this bead there is one force acting downwards that is equals to mg. So this is mg. And also if this bead is rotating in a circle about axis AB, so we can say that there is one centripetal force also that is outwards, and that has the value of m omega square into radius of circle is r by 2. So m omega square r by 2. So this is our centripetal force and this is mg. Now students, if this bead is at rest at position P, so we can say there is one normal reaction also. So our normal reaction will be in this direction. This is our normal reaction end. Now if we assume this angle theta, now we have to first find the theta. So for finding the theta we have to go towards the triangle OCP. So in triangle OCP, this is our OC side, this is our CP side, and this is OP side. So this is OP and this is C. This distance is given to us, that is r by 2, and this given to us, that is r. And in the figure the theta is this. So in this triangle we can write the value of sine theta, that is equals to perpendicular upon hypotenuse, and we know the perpendicular is this side and hypotenuse is this side OP. So perpendicular is r by 2 and hypotenuse is r. So from here we can see that our theta comes out to be 30 degree. So here we get the value of theta that indicates in the figure. Now we have to do the two components of normal reaction for balancing the forces. One component is this and another component is this. This is our n cos theta and this is our n sin theta. Now we have to apply the condition of equilibrium. So condition of equilibrium in horizontal and vertical direction. So if we apply first for horizontal direction, that is n sin theta is equals to m omega square r by 2. This is our first equation. This is n cos theta is equals to mg. This is our second equation. Now on dividing first and second equation, we get tan theta is equals to omega square r by 2g, and also the value of theta is known to us, that is 30 degree. So we can put the value. So tan 30 is 1 by root 3. So 1 by root 3 is equals to omega square r by 2g. So from here the value of omega square comes out to be 2g divided by root 3 r. So this is the value of our omega square. So from here our correct option comes out to be option C, 2g divided by r root 3. This is our correct option. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन वायर विच पासेस थ्रू द होल इन अ स्मॉल बीड इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के क्वार्टर के फॉर्म में बेंड है, ये यहाँ पे दिखाया गया ये भी। द वायर इज फिक्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एज शोन द फिगर। तो वर्टिकल है यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो स्लोप अगर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट बी पर तो वो वर्टिकल बनेगी। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जब।
तो द बीड इज रिलीज फ्रॉम द नियर द टॉप ऑफ द वायर एंड स्लाइड्स अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर इज। तो बीड को जब यहाँ से छोड़ेंगे, ये स्मॉल बीड है, ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें नॉर्मल डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, मतलब कि जो फोर्स अप्लाइड है वो कैसे चेंज हो रही है। तो बीड जो अप्लाई करेगी फोर्स, वो कौन सा फोर्स होगी, जिस पर नॉर्मल डायरेक्शन होगी, ठीक है, बीड पर, तो वो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो इस पर नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई हो रही होगी वही इस पर, ये वायर पर अप्लाई कर रही होगी बीड, ठीक है, फोर्स। तो बीड के बारे में जब बात करेंगे तो ये हमारे पास बीड है, इसका क्या है, इसका मास mg है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक डायरेक्शन होगी जो नॉर्मल के अलॉन्ग होगी और एक होगी जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये कितना है, 90 डिग्री। तो नॉर्मल के अलॉन्ग जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अब देखिए इसके ऊपर, क्योंकि ये बीड है, इसका मास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन इस पर अपवर्ड लग रही होगी, नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लग रही होगी इस पर, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg का, वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसके साथ किसी एंगल पर, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ जो है वो थीटा है, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ वाला एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल यहाँ पर है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल mg cos थीटा, ये वाला एंगल mg sin थीटा, ओके। अब यहाँ से क्या हो रहा है, n माइनस mg cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी अभी इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग, तो वो इसको नेसेसरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो n माइनस mg cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी n माइनस mg नहीं, n माइनस mg अगर लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या है कि ये आउटवर्ड हम लोग लिख रहे हैं नेट फोर्स इस पर, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r, जिस आर में मूव कर रहा है जिस रेडियस में, इसकी रेडियस की लेंथ r है, ठीक है। ये किसके अलोंग द नॉर्मल, हमने इसके फोर्स को बैलेंस कर लिया है, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई इसकी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स आ रहा है इस पर, वो किस तरफ आ रहा है, mg sin थीटा के अलोंग। तो बेसिकली इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व करा देते हैं इसकी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ये कुछ किसी एंगल थीटा पर होगा तो क्या हो जाएगा, कितनी हाइट गिर चुका होगा, ये इतनी हाइट गिर चुका होगा, और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू r बोल देते हैं। तो mg r माइनस आर कॉस थीटा, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ये किसके इक्वल होगा, जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी इनिशियली, तो हाफ m v स्क्वायर के, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2gr 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस वाली v की वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स m अपॉन r टाइम्स 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स ट्वाइस mg माइनस ट्वाइस mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स थ्राइस mg cos थीटा माइनस 2mg, ओके। तो n की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से mg 3 cos थीटा माइनस 2। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वायर इज, तो बीड जो अप्लाई कर रही है फोर्स वो कितना होगा, n, क्योंकि वायर इस पे बीड पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर, तो बीड भी इस पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी n के इक्वल, ठीक है। तो और n की डायरेक्शन कैसी होगी वो देख लेते हैं हम लोग। ये जब 3 cos थीटा माइनस 2 ये कर रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज, मतलब इसकी साइन चेंज कर रहा है n की वैल्यू का, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब क्या होगा, n पॉजिटिव होगा
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बीड पे ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा और इस पे ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। और जब ये वैल्यू 3 cos थीटा माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे बीड पे फोर्स इनसाइड लग रहा होगा, मतलब टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा ये वाला फोर्स, और इस पे ये फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, और ये कब हो जाएगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिख देना चाहिए, ग्रेटर देन 2/3, और ये कब हो जाएगा जब cos थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 करना है, इसका मतलब क्या है थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, cos इनवर्स 2/3 से। और यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू कम करनी है और हमें पता है cos थीटा कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री में, तो डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, cos इनवर्स 2/3 से, और इस वाले केस के लिए थीटा की वैल्यू छोटी होनी चाहिए cos इनवर्स 2/3 से, ओके। cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू होती है 48.18 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू बड़ी होगी 48.18 डिग्री से, तो n मतलब नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट्स ऑन, जो मेरे पास वायर है, वायर कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 48.18 डिग्री से, इसका मतलब ये वाला केस हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी 2/3 से, इसका मतलब n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, n की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या है कि इस पे n आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग एक्ट करेगा, एक्ट्स अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी 48.18 डिग्री से, तो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2/3 से, n के लिए पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब इस पे कैसे एक्ट करेगा, n एक्ट्स ऑन वायर, कैसे, एक्ट्स अलोंग द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, या फिर एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, अलोंग नहीं लिखना चाहिए, टुवर्ड्स लिखना चाहिए यहाँ पर, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है विदाउट डैम्पिंग के, ठीक है ना। बोल रहा है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन वेक्टर इज करेक्टली शोइंग, कैसा एक्सेलरेशन इसका वेक्टर होगा। तो चलिए कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पे है बॉब है, ठीक है ना, एक यहाँ पे मान लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल पे यहाँ बना रही है, ठीक है। अब यहाँ जो है एक्सेलरेशन वेक्टर जो है, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, ठीक है। एक एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, इस पे एक एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंटियल लगेगा और एक लगेगा एक्सेलरेशन वेक्टर रेडिकल। एक्सेलरेशन रेडिकल वेक्टर ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन रेडिकल होगा, क्योंकि ये जो है ना इसके सेंटर की ओर लग रही है, और ये एक्सेलरेशन टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा, और इसका जो है ना ये पूरा मतलब कि रिजल्टेंट होगा, जो कि बोल सकते हैं ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर देखें ए नंबर में, तो ये तो एक्सेलरेशन रेडिकल वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्सेलरेशन टेंजेंटियल हो गया, ये तो डायरेक्ट ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में ए का डायरेक्शन है। सो अगर हम अपना सी नंबर देखें, तो सी नंबर हमारा एक्सेलरेशन रिजल्टेंट हो जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन टेंजेंटियल और एक्सेलरेशन रेडिकल का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो हमारा सी नंबर जो है राइट आंसर है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए स्टोन है इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड इज व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विथ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर, ठीक है। एंड एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन एंड हैज ए स्पीड यू, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो एक एंड पे अटैच्ड है विद द स्ट्रिंग, एंड एक
एक स्ट्रिंग हमारा क्या है, स्टोन टाइड है एट वन एंड ऑफ द, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, जी बीइंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूछ रहा है कि जब ये इनिशियल पोजीशन मतलब वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि ये मान लेते हैं हमारा सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा स्टोन है, ठीक है। इसके अबाउट ये फिक्स्ड है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इसके पास वेलोसिटी u है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी किधर, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मान लेते हैं v। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं अगर ये दो वेक्टर हैं, u हमारा इधर है और एक v वेक्टर इधर है, ठीक है, जो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, जब ये हाईएस्ट मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो इस समय इसके बीच में कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें निकालना है चेंज इन वेक्टर मतलब v माइनस यू वेक्टर का मोड निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे u दे दिया है, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं कि ये स्ट्रिंग ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रिंग का हमें लेंथ दिया है l, ठीक है। अब ये जैसे ही इस पॉइंट पे होगा तो हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं किसी, ये थीटा एंगल है, ठीक है, और ये मास हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, ठीक है। और ये टेंशन t लगेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। ये हमें लेंथ l दी दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है थीटा जब इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस समय हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो जो यहाँ पे एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन मतलब जो यहाँ पे एनर्जी होगा, ठीक है, वो यहाँ पे एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा इतना एनर्जी लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, केवल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे क्या है, इसके पास एक, इसको इस पॉइंट को अगर हम इस लाइन को रेफरेंस मानते हैं तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ से अब निकाल लेते हैं। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी k प्लस यू होता है, ठीक है। तो हम पहले मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल निकालते हैं। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v स्क्वायर। हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है u, मतलब ये यहाँ पे u दिया है, ठीक है। हम उसका मास मान लेते हैं m है, ठीक है। तो हमें एट लोवेस्ट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी दिया है u, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल निकालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल में क्या होगा कि जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये कितना ऊपर गया है मतलब mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास। तो यहाँ से क्या होता है, ये k प्लस यू होता है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास मान लेते हैं, उसके पास वेलोसिटी v है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस mg इंटू एल, ये उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों बराबर होंगे, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा तो इट इम्प्लाइज, यहाँ से हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इट इम्प्लाइज क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl, ठीक है। तो यहाँ से v आ गया हमारा, v स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है, अब हमें निकालना था कि हमें मोड ऑफ v माइनस यू निकालना था। तो हमें यहाँ से देख लिए हैं कि वेलोसिटी v वेक्टर एंड u वेक्टर के बीच में कितने डिग्री बन रहा है, तो हमने पहले ही बता दिया कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मैंने ये दिखा दिया है। तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका दो वेक्टर का यहाँ से यहाँ पे एंगल हमें पता है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, अब v स्क्वायर हम यहाँ निकाल चुके हैं, v स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखे हैं, यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो यहाँ से आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है। तो अब यहाँ से हमें यही चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, वेलोसिटी वेक्टर कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट अंडर 2u स्क्वायर माइनस 2gl। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस gl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया, यही हमसे पूछा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है।